Okay. For the last 120 days, guys, my sincere request to everybody, do not miss out on sessions, because inside the sessions, we are not only doing principal rate time, you are calculating interest. Okay. What we are doing inside the session is effectively moving into depth of concepts. Okay. For example, have a look at this question. How many of you will feel uncomfortable if a question like this comes in CAT exam? There are two people running on a track with 4 meter per second, 8 meter per second. When will they meet for the 89th time? Where will they meet for the 89th time? For 113th time, where will they meet? Right? Or if you have something like, if a container has 40 liters of milk, 4 liters is being removed and replaced with water, and this is being repeated after how many operations will milk be less than water in the container? Right? So, not the conventional problems. I think the time for conventional problems is now gone. Last 120 days is to basically get into the depth of concept. Compound interest for the fourth year is given, second year is given. You have to find out principal. You are not finding out principal given, rate given, time given. Now you are finding out interest. That time is over now. So we are to get to the depth of concepts. We have to solve problems that are requiring a depth from the standpoint of concepts. Example, principal is given, rate is given, time is given. You have to find out three installments using simple interest, right? You have to, for example, let's say there are, let's say I have two installments given, I have principal given, I ask you to rate. Okay, think about it. How many of you are able to think about this problem? I give you principal, I give you installment number one, I give you installment number two, and I ask you what is the rate. Are you able to imagine this problem? Give me yes or no in the chat. So the while we will obviously be revising basics, we'll be doing basics also, but we are not only doing the basics in the last 120 days. Therefore, do not miss the classes. Is that clear to everybody? Give me yes or no in the chat. Okay. Do not miss out on the sessions. We are not going to be solving principal, rate, time. You're calculating, interest. One person does something in 10 days, somebody does in 15 days. How many days will the combined do it? And so that is not something which we are going to be. So remember, the next 120 days are going to be very important in terms of building the depth. That is number one. Second, every day for the last 120 days, or at least the next 70, 60 to 70 days, you have to dedicate some time for concepts also. A lot of people are under this impression that if I practice properly, I will get a good score. That is a myth. I am saying, not saying that practice is not important. It's definitely important. But only practice is not going to help unless you develop the concept depth that is required. And that is something which has to be done inside the class, wherein you are able to ask questions. Okay. Wherein you are able to, create, for example, questions, queries, doubts, ask them directly to the faculty and get your answers. ओके। ऐश्वर्या सिंह, बट प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना? ऐश्वर्या, सिंपल चीज है। अगर मान ले कि अ क्वेश्चन Q1 helps me understand concept 1, okay, and a question Q2 helps me build a concept C2. मान लो there is a concept CN जिसके corresponding you did not find a QN. Possible or not? Do you guys agree with me or not? देर इज अ कॉन्सेप्ट CN जिसके करस्पॉन्डिंग QN तुमको मिला ही नहीं प्रैक्टिस में। पॉसिबल है ना? और वो सीधा कैट में मिल गया फिर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गो फ्रॉम Q1 to C1, important to go from C1 to Q1, C2 to Q2, CN to QN. So in that case, even if you have not solved a certain question, you will be able to solve it in the exam because your concepts are strong. Many people will also tell you, people who attempted CAT will tell you that many a times you get a question, you have not seen a similar question inside PYQs or any other practice material. That is also possible. ठीक है? किसी ने CAT experience किया है तो they can confirm that in the chat. Sometimes you also find questions जैसा question तुमने नहीं किया हुआ है, तुमने कभी नहीं देखा है वैसा question, ऐसा question भी CAT में आता है, and that is the speciality of CAT. It is unpredictable, and therefore the reliance on concept is very, very important.
आपका कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए, तभी आप प्रेशर सिचुएशन में वो क्वेश्चन निकाल पाओगे। सबको क्लियर हुआ? तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Kashish, don't worry. A lot of people are starting in the last 120 days also. Very recently, we had done a session with Gaurav from last year. कितने लोगों ने गौरव वाला सेशन अटेंड किया था जो हमने YouTube पे कराया था? Gaurav last year got a 99.47, went to IIM Lucknow. He was part of MBA Litmus last year, and he got that in 120 days. और अगेन फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले कि तुम मेरे को पूछो, मैं बता देता हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट, तुम पहले शुरू हो जाएगा इंजीनियर, कॉमर्स गाय 99.47 in 120 days, started around the same time. तो आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग कि डुएबल तो है ही। देर आर पीपल सिटिंग इनसाइड द रूम, इनसाइड द सेशन, एंड इनसाइड डिफरेंट ग्रुप्स, एंड इनसाइड आउटसाइड आवर प्रोग्राम ऑल्सो, हु विल डू इट इस 120 दिन में, हु विल डू 99.5, 99.6, 99.7। ठीक है, ऋषु, गो अहेड, टेल मी व्हाट्स योर डाउट। So wherever you have any doubts, please feel free, unmute yourself and ask questions. Absolutely simple. Okay. Are we all good? Rishu, if you have any doubts, you can put in the chat or you can unmute yourself and participate. Absolutely fine. Okay. I am hoping that the concept building part is absolutely clear to everybody. Nobody misses out on a session. Okay. I'm sure that you will, a lot of people think that ठीक है recorded session देखेंगे, but recorded session के अंदर और लाइव सेशन के अंदर आई से मज़ा ज़्यादा लाइव सेशन में आता है। हम थोड़े मज़े भी करते हैं, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, थोड़ी हंसी भी उड़ाते हैं और थोड़े फन भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आस्क क्वेश्चंस, वी आस्क क्वेरीज, आस्क डाउट्स। तो अगर कोई टॉपिक चल रहा है इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो कैसे भी आप, फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टॉलमेंट के कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, लेट मी टॉक अबाउट हाउ डू यू गेट स्टार्टेड एंड हाउ डू यू प्रिपेयर इन द लास्ट 120 डेज। कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी मैंने क्वेश्चंस दिखाया, इस टाइप के क्वेश्चंस अगले 30 डेज में अपने को सॉर्ट आउट करना है। मतलब 30 से 35 दिन, 40 दिन में इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम एकदम इजी लगने चाहिए कि यार क्या ही है, तो आसान सवाल है। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि प्लान कैसे बनाना है यहाँ से। ठीक है, 3 अगस्त से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, और कॉलेज जाने के बाद में आपको एक ऐसा एडमिट कार्ड मिलेगा, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, आई एम विशिंग एंड आई एम प्रेइंग एंड वी आर ऑल प्रेइंग दैट वी गेट दैट। ठीक है, बट सिर्फ प्रे करने से नहीं होगा, फाइट मारना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अपना प्लान कैसे रखना है। ठीक है, हाउ डू वी गो अबाउट इट। Notification is all out and all of that is something which is done. Now let me talk about how do we go about the प्रिपरेशन। ठीक है, यहां से, अब यहां से अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो किस तरीके से हम प्रिपेयर करने वाले हैं अगले 120 दिन में, वो मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, एवरी डे तुम्हारा 2 घंटा यू शुड ट्राई टू पुट इन, लाइक 2 आवर्स, जिसके अंदर हम क्लासरूम में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, एंड उसके अलावा यू विल बी पुटिंग इन सम टाइम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक। ठीक है, दैट इज द डेली टास्क दैट आई हैव। फॉर एग्जाम्पल, मान लो टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा, तो टाइम एंड वर्क के ऊपर आई विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स? एटलीस्ट 25 प्रॉब्लम्स। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ यू सॉल्व दैट इन योर डैशबोर्ड थ्रू द टॉपिक प्रैक्टिस पेपर्स और ई बुक्स। आप ई बुक से करो या प्रैक्टिस पेपर से करो, लेकिन वो आपको डेली लेवल पे कॉन्सेप्ट्स के साथ में करते जाना है। ये सबको समझ में आया? गिव मी यस और नो इन द चैट। ठीक है, सिंपल। आई वांट एवरीबॉडी टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क कर लिया, टाइम एंड वर्क करने के बाद व्हाट यू शुड डू इज, आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स हैं तो टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस पेपर उठा लो, उसको सॉल्व कर लो, या फिर ई बुक्स के अंदर से टाइम एंड वर्क के कम से कम 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो अपने कुछ क्वेश्चंस क्लास में भी हो गए, कॉन्सेप्ट भी कर लिया हमने, और उसके साथ में हमने घर पे भी थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दैट्स समथिंग विच इज एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, तो मंडे को अगर क्वांट्स किया तो क्वांट्स क्वांट्स, ट्यूसडे को डीआईएलआर, अगर वेंसडे को किया तो वेंसडे एंड थर्सडे को डीआईएलआर, एंड आपका फ्राइडे एंड सैटरडे अगर हम वीआरसी कर रहे हैं तो वीआरसी। ठीक है, दैट्स नंबर 1। ओके, एब्सोल्युटली दिवांश, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट्स बीइंग डन इन द क्लास, दैट्स नंबर 1। ओके, उसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा और आपको क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा यहां से डेली लेवल पे, डेली लेवल पे आप
दो दो सेक्शनल्स प्लान करो। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने क्यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास किया है, क्यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने क्लास किया है, तो सेक्शनल्स आप डीआईएलआर का कर लो और वीआरसी का कर लो। ठीक है। ये पूरा काम करने में एक दिन में कितना समय लगेगा, कोई मुझे बता सकता है? अगर मैंने 2 घंटे ब्लॉक कर दिए जिसमें मैंने क्लास और असाइनमेंट किया, फिर मैंने एक सेक्शनल डीआईएलआर का किया, एक सेक्शनल मैंने वीआरसी का किया, टोटल कितना टाइम? 4 घंटा। ठीक है, 4 आवर्स। सो अगर मैं अभी से चालू कर रहा हूं तो मेरे को एक दिन में 4 घंटा टाइप लेके चलना है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? फटाफट कंफर्म करो। कोई नेगोशिएट तो नहीं करना चाहता है मेरे साथ कि नहीं नहीं, मैं 2 ही घंटा करना चाहता हूँ? ठीक है, देख, अगर तेरा टारगेट है 90% तो तुम 2 घंटा करो। अगर तेरा टारगेट यहाँ से 90% आएगा, सिंपल है। बहुत किसी का ऐसा हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सम लेट्स से देयर आर फ्यू पीपल हु आर एमिंग फॉर कैट 27। ठीक है। एंड उनके केस में ये है कि भाई कैट 26 में, मतलब जो लोग 27 के लिए हैं उनको तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई तुम 26 में 90+ करो। तो उस इंसान के लिए 2 घंटे में काम हो जाएगा। अगर वो अपना 2 घंटे क्लास और असाइनमेंट करेगा तो भी उसका ट्रैक बढ़िया है। लेकिन अगर तुम टारगेट कर रहे हो कैट 26 में 99, यहां से यहां से अगर तुम 99 करना चाहते हो, गेटेबल, एब्सोल्युटली गेटेबल, लेकिन प्लान को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। नेगोशिएशन नहीं कि मैं आज 3 ही घंटा कर सकता हूँ, मैं आज 2.5 ही घंटा करूंगा, मैं अभी मैं एक शादी में जाने वाला हूँ, मैं घूमने जाने वाला हूँ। ये सब चीजें थोड़ा सा दोस्तों सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू दैट? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। विदाउट सैक्रिफाइसिंग यहां से आपका काम उस तरीके से होगा नहीं। तो सैक्रिफाइस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर द लास्ट 120 डेज। अगर यहां से तुम 99 मारना चाहते हो तो यहां से तुझे, यू हैव टू बी वेरी वेरी कमिटेड टू द कॉज, वेरी कमिटेड टू द कॉज। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सिमिलरली, सेम फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को किया, लेट्स से हमने ट्यूसडे को वी पिक्ड अप मिक्सर एलिगेशंस में घुस गए एकदम डिटेल में। अब एक एक सिंपल चीज मेरे को सब लोग फटाफट कंफर्म करो। ठीक है, जिसने भी थोड़ा बहुत अरिथमेटिक पढ़ा है, थोड़ा भी अरिथमेटिक पढ़ा है, आई एम टेलिंग यू, कैट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस। कैट कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है। कैट कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। तो फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ। एग्जांपल, मान लो आप लेट्स से 60 किलोमीटर डिस्टेंस करते हो कवर एट 60 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। 60 किलोमीटर आप करते हो एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद आप अगला 40 किलोमीटर करते हो, अगला 40 किलोमीटर आप करते हो एट 40 किलोमीटर पर आवर, और मुझे एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है। तो कैन आई टेक अ वेटेड एवरेज हियर? सिंपल सवाल है। क्या मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा के क्या मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा के एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ क्या? सब लोग फटाफट चैट में कंफर्म कर दो जो भी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। अब कैट यही चीज चेक करता है कि भाई आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ कितना है। मेरे को बाकी लोगों के भी आंसर्स चाहिए। आई हैव गॉट आंसर्स फ्रॉम जूम यूजर, जिल, छवि, करण। व्हाट अबाउट एवरीबडी एल्स? बाकी लोगों का क्या सीन है? यस कि नो? यस कि नो? क्या मैं वेटेड एवरेज लगा के यहाँ पे निकाल सकता हूँ? आर यू अप फॉर अ सरप्राइज? द आंसर इज नो। आप यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा के नहीं निकाल सकते हो। वेटेड एवरेज लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो भी बता देता हूं। देखो, सिंपल चीज समझो। स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड इनटू डिस्टेंस इज नो यूनिट एक्चुअली। स्पीड इनटू डिस्टेंस इज नो यूनिट। स्पीड इनटू डिस्टेंस, तो बेसिकली वेटेड एवरेज करेगा तो क्या होगा? तुम बेसिकली डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहा है। डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है, राइट? देयरफॉर यहाँ पे तुम वेटेड एवरेज लगा के कैलकुलेट करेगा, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। दिस इज कंसेप्चुअल डेप्थ। कितने लोगों को समझ में आया कि कंसेप्चुअल डेप्थ के बारे में जो बात कर रहा हूं मैं, वो मैं क्या बात कर रहा हूँ? व्हाट इज कंसेप्चुअल डेप्थ? दैट इज, अब देखो इसी प्रॉब्लम को अगर मैं 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर चेंज कर दूं, अब मैं बोलूं कि भाई तुम 60 आवर्स के लिए 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो और 40 आवर्स के लिए 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो। अब बताओ एवरेज स्पीड लगा के, वेटेड एवरेज लगा के एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं?
कैन आई यूज वेटेड एवरेज नाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड? अब क्या मैं वेटेड एवरेज लगा सकता हूं? नाउ द आंसर इज यस। नाउ द आंसर इज यस। बिकॉज तुम इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारे को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, और फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, तो अपना एवरेज स्पीड निकल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट कैट इज टेस्टिंग। कैट इज नॉट टेस्टिंग कि तुझे वेटेड एवरेज लगाना आता है कि नहीं। कैट इज टेस्टिंग कि कहाँ पे वेटेड एवरेज लगेगा वो तुमको पता है कि नहीं। समझ में आया? रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन क्लियर हुआ? एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल नहीं है कि तुमको वेटेड एवरेज तो तुमको आता ही होगा यार। मतलब तुम कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो भी देखोगे, उसमें वेटेड एवरेज बता देगा कि भाई वेटेड एवरेज कैसे करते हैं। वेटेड एवरेज इज नॉट अ बिग डील, एलिगेशन इज नॉट अ बिग डील, सबको आता है। कहाँ लगाना है, कौन से सिचुएशन में नहीं लगा सकते हैं, ये कंसेप्चुअल डेप्थ है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? इसीलिए आई एम सजेस्टिंग डू नॉट मिस आउट ऑन इवन वन सेशन। ठीक है, किसी सेशन के अंदर ऐसे मस्ती हो रही होगी, मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि तुम पढ़ लो। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं बोलता हूँ, मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से सेशन के अंदर हम बैठ के इफ यू आर सॉल्विंग लेट्स से 8 to 10 प्रॉब्लम्स इन एन आवर। ठीक है, करेक्ट, इफ यू आर सॉल्विंग लेट्स से 8 to 10 प्रॉब्लम्स इन एन आवर, तुम खुद भी बैठ के 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो क्लास के अंदर बैठ के सॉल्व करो। बिकॉज यहाँ पे तुम अपना क्वेश्चंस भी कर सकते हो और डाउट भी पूछ सकते हो। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है ना? ऐश्वर्या सिंह, बट इतना डीप में थिंकिंग कैसे बिल्डअप करें? सेशंस में बैठो ऐश्वर्या, सेशंस में बैठो और दबा के क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, सिंपल है ऐश्वर्या। यू ऑल्सो, आई नो दैट यू ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, बट मेक श्योर करो कि कोई भी एक छोटी सी चीज भी क्लियर नहीं है, तो यू आस्क क्वेश्चंस, एंड ओवर द नेक्स्ट 120 days दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बिल्ड। ठीक है ना? तो तब बेसिक बेसिक वाला टाइम अब बीत गया है, अब डेप्थ में जाने का समय आ चुका है। सबको समझ में आ रहा है? तो डेप्थ में जाने का टाइम अब, दिस इज द टाइम दैट वी आर गोइंग टू डेडिकेट टू गेट इनटू दैट डेप्थ। ठीक है, सो देयरफॉर डू नॉट मिस आउट। ओके, अब जरा गौर से देखो। छवि सिंह, आई हैव completed VRC and DLR, only QA is remaining, but I feel like I am too weak in QA। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है कि टू वीक इन QA वाले एक बार फटाफट कंफर्म करो। देख, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं कि टू वीक इन QA वाली जितनी भी जनता है ना, तुम सब लोगों को मैं सिंपल बोलूंगा। आई टेल यू जस्ट वन सिंपल थिंग, ओके, एंड दैट इज स्टार्ट फ्रॉम डूइंग द बेसिक्स। ओके, स्टार्ट फ्रॉम डूइंग द बेसिक्स, स्टार्ट गेटिंग, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर बैठेगा ही नहीं तो तुम कभी नहीं करेगा अचीव। सो इट्स इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जिनको क्यूए का फोबिया होता है, वो क्वांट्स की क्लास में फॉर एग्जाम्पल बैठते, या तो बैठते नहीं है, या बैठते हैं तो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द सेशंस, स्टार्ट व्हेन वील फॉर एग्जांपल फॉर 120 days व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, फिर अर्थमेटिक करेंगे, फिर अलजेब्रा करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे, मॉडर्न मैथ्स करेंगे। तुम्हारा रिक्वायरमेंट बस इतना ही है कि डेली क्लास में बैठना है, और क्लास में बैठ के जो भी टॉपिक हो रहा है वो टॉपिक को कवर करना है कंप्लीटली। मतलब उस टॉपिक के अंदर जो भी कॉन्सेप्चुअल नुआंसेस हैं वो तो हम कवर करेंगे ही, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्लियर करके जाना है। ये कितने लोगों को समझ में आया? योर responsibility is to ask questions till the point that concept is clear before you exit that class. Is that clear to everybody? छवि सिंह, डू वी हैव इनफ टाइम टू गेट अ 99+? छवि, सवाल ये नहीं है कि मेरे पास समय है कि नहीं 99 करने का। आई विल टेल यू कि इसी सेशन के अंदर से, क्लास के अंदर से जो लोग 120 के अंदर स्टार्ट करेंगे वो 99+ करेंगे। वही मैं बता भी रहा था। एंड देर आर पीपल हु विल डू इट। वी विल डू इट और नॉट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हाउ डू वी ऑपरेट। आर वी इफेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड इन आर अप्रोच? आर वी आस्किंग द क्वेश्चंस इनसाइड द क्लास? अगर टॉपिक इंस्टॉलमेंट पढ़ाई हो रहा है क्लास के अंदर, तो it's responsibility of mentor as well as mentee to clear everything, and I can absolutely promise you कि एक भी हाथ अगर हवा में होगा, मतलब इफ इवन इफ वन हैंड इज रेज्ड, वी विल नॉट क्लोज द क्लासरूम। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी हैव बीन ऑपरेटिंग ऑल्सो। ठीक है, वी डू नॉट क्लोज द क्लास अंटिल ईच एंड एवरी डाउट इज रिजॉल्व। तो अगर एक हाथ भी हवा में है तो क्लास नहीं बंद होगा। ठीक है, क्लास का स्टार्ट टाइम होगा, लेकिन क्लास का एंड टाइम तुम डिटरमिन करो। Ask questions. Do not say yes until you are sure. Is this clear to everybody? Do not say a yes inside the class.
Do not, say that you are clear until you are actually clear. Ask questions. That is how you improve any subject that you are weak at. DILR तेरा वीक है, क्वेश्चन पूछ। डीआईएलआर के अंदर क्वेश्चन क्या पूछना है मैं तुम्हें बताऊँ, वो भी बता देता हूँ कि क्या पूछना है। डीआईएलआर के अंदर टिपिकली फॉर एग्जांपल लेट्स से मेंटोर सॉल्व करते हैं, तो तुम्हें ये नहीं पूछना है कि ओ हो क्या सोल्यूशन, आइडिया कैसे आया, कैसे सोचा, कौन सा एलिमेंट को पहले यूज किया। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल डीएलआर के सेट में तुम्हारे पास इनपुट्स दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, 6 वाला पहले क्यों यूज कर रहे हो, मतलब ऊपर से आकाशवाणी तो आएगी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि 6 को पहले यूज करना है, फिर उसके बाद 1 को यूज करना है, फिर 3 को, ये सीक्वेंस कैसे डिटरमिन किया। देर इज अ थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टू कैप्चर। डीआईएलआर के अंदर तुझे थॉट प्रोसेस पकड़ना है, क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट, फटाफट कंफर्म करो। सो योर रिक्वायरमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज नॉट टू मेमोराइज। बहुत सारे लोग पीवाईक्यूज अब रटना शुरू करेंगे, तुम्हें नहीं रटना है, तुम्हें सॉल्व करना है एंड अप्रोच समझना है। डीआईएलआर के अंदर वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि अंडरस्टैंड एज टू हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग विद इन डीआईएलआर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, समझ में आया? ओके, है ना? सो इफ यू कांट सॉल्व इट, मेमोराइज इट। ओके, क्लियर है ना? सार्थक इज सेइंग सर यू जेन्युइनली मोटिवेटेड वंस इनर वॉइस टू आस्क इफ इट इज नॉट गेटिंग। एब्सोल्युटली, एक सिंपल चीज है। रिशु गो अहेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। ठीक है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, गो अहेड, अनम्यूट करो। ठीक है, एंड पूछ लो, सिंपल चीज गुड है, इवनिंग गो सर। अहेड। हाय रिशु, गुड, गो अहेड। सर ये कह रहा था, मेरे कुछ डाउट्स है, जैसे क्यूए से, मैथ्स वगैरह से। अ, मेरी बेसिक जो है मैथ्स की सर। हेलो। हाँ हाँ, गो अहेड, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, कह रहा हूँ मेरी मैथ्स की जो बेसिक है वो बिल्कुल वीक है सर। मतलब मैथ्स का मेरे को एम नहीं आता, आप ऐसे समझ लीजिए। हम्म। मैंने कल सिलेबस वगैरह मतलब देखा हुआ कैट का, तो रीजनिंग वगैरह तो कुछ कुछ ठीक है, बट सर मैथ्स वगैरह बिल्कुल मतलब समझिए कि 1% नहीं है। शुरू से अगर मुझे मैथ्स करना भी होता है तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। ठीक है। और इसमें जो सिलेबस है इसका, मान लिया आपको सब, मैं भी देख रहा हूँ उसके क्वेश्चंस वगैरह मैंने देखे हैं, तो है उस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत टफ वगैरह क्वेश्चन है सर इसके। प्रैक्टिस करने पे ही होंगे, बट मुझे अगर बेसिक ही मेरा क्लियर नहीं है अगर मैथ्स का, तो मैं ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाऊंगा सर 4 महीने के अंदर। देखो ऋषु, एक सिंपल चीज समझ कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से बहुत वीक है, मान लो हमने एक्नॉलेज कर लिया कि बहुत वीक है, बट जेन्युइन क्वेश्चन इज क्या तुम इंप्रूव करना चाहते हो? यस। इम्प्रूव करना तो चाहते हैं सर, बट इसके लिए तो मेरे को पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा ना। तो भाई मेरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल जो हम 120 डेज के अंदर बैठेंगे तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसके अंदर अगर तुम्हारा बहुत वीक है, ठीक है, तुम्हारी चीजें बहुत ज्यादा वीक हैं, हम्म। तो तुम बेसिक फाउंडेशन से शुरू करो। कि भाई तुम्हारे फॉर एग्जांपल लेट्स से डैशबोर्ड के ऊपर कुछ बेसिक फाउंडेशन सेशंस होते हैं जिसके अंदर हम्म। तुम्हारा एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फ्रैक्शन टेबल हो गया, बेसिक परसेंटेजेस हो गया, एवरेजेस हो गया। यहां से स्टार्ट करो पढ़ाई को। ठीक है, देखो एक हम्म। सिंपल चीज रिशु, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास 4 महीना है, तुम ये सोचो कि तुम इंप्रूव करना चाहते हो, सिंपल एज दैट। और एक और चीज मैं सब लोगों को बता देता हूँ, सब लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपने को अभी फॉर एग्जांपल अच्छा स्कोर लाना है, कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाने के बाद अच्छे कॉर्पोरेट में जाना है, सही बात है। एप्टीट्यूड तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये कितने लोगों को पता है? हम्म। एप्टीट्यूड इज नॉट गोइंग टू लीव योर साइड। तुमको एप्टीट्यूड के बिना कुछ नहीं होना इसके बाद भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस यहां से काम निकल जाए और काम निकलने के बाद फिर तुम कॉलेज जाएगा वहां पे सारे रिक्रूटर्स एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएंगे। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 500 लोग हैं, सबको तो वो जीडीपीआई के लिए बुलाएंगे नहीं। वो बेसिकली पहले सीवी पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, सीवी पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने के बाद जीडी करवाते हैं, फिर पीआई करवाते हैं, तो वहां भी एप्टीट्यूड लगने वाला है। और वहां भी क्वेश्चन तुम्हारे वहीं आएंगे, तुम्हारा क्वांट्स, और क्वांट्स में वहां भी अरिथमेटिक, मैक्सिमम अरिथमेटिक आता है। तो वहां भी तुम्हारे को क्वांट्स लगेगा, वहां भी तुमको लॉजिकल रीजनिंग लगेगा, और वहां भी तुमको इंग्लिश लगेगा, ही वीआरसी। तो बेसिक चीज ये है कि अभी के लिए तुम ये मत सोचो कि भाई मेरे को 4 महीने में कैट के लिए कुछ बहुत तगड़ा करना है। तुमको अगर लाइफ में कॉर्पोरेट में जाना है एट अ गुड लेवल, एट अ सर्टेन लेवल, तो वहां पे बिना इन एलिमेंट्स के नहीं होगा, और इसीलिए कैट के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है।
सिंपल चीज समझो। जो लोग देख, हम वी सर डू लॉट सर ऑफ, मैं ये कहता हूँ। कि अगर तेरा क्वांट्स हेलो। वीक है ऋषु, क्वांट्स वीक है, तो तुम बेसिकली स्टार्ट जी। करोगे हम्म। फाउंडेशन से। फाउंडेशंस के बाद तुम जाओगे हम्म। कॉन्सेप्ट बेसिक्स में। कॉन्सेप्ट बेसिक्स के हम्म। बाद तुम जाओगे कॉन्सेप्ट डेप्थ्स में। और कॉन्सेप्ट हम्म। डेप्थ्स के बाद तुम जाओगे सेक्शनल्स में। ये तुम्हारा अप्रोच होगा। सिंपल चीज है। हम्म। अगर कोई इंसान फाउंडेशंस उसका ठीक ठाक है, मतलब उसका हम्म। उतना बुरा हाल नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट बेसिक से शुरू करेगा। अरिथमेटिक में जाएगा, अलजेब्रा में जाएगा, ज्योमेट्री में जाएगा, पहले बेसिक चीजें सीखेगा। कि भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालना है। मतलब अंडे से भुर्जी हम्म। कैसे बनाते हैं। जो अंडे से भुर्जी बनाना सीख गया वो जाएगा कॉन्सेप्ट डेप्थ में। कॉन्सेप्ट डेप्थ में हम क्या करते हैं कि भाई इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का, तुम प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो। ये हो गया कॉन्सेप्ट का डेप्थ, मतलब भुर्जी से अंडा बनाने वाला स्टेज। ये हो गया तुम्हारा थर्ड स्टेज। और उसके बाद तुम्हारे सेक्शनल्स दो दबा के। अगर किसी का ये तीनों स्टेज डन है, तो वो इस पॉइंट इन टाइम पे क्या करेगा, दबा के सेक्शनल देगा। किसी का अगर ये वाला स्टेज डन नहीं है, तुम अगर फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है कि मैथ्स का एम भी नहीं आता है, 1% भी नहीं है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो यहां से स्टार्ट करेगा। और जब तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज ये करोगे, कैलकुलेटर बंद कर दो। देखो बहुत सिंपल है। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो सिगरेट बंद कर दो, अल्कोहल बंद करो। और अगर मैथ्स बिल्ड करना है तो कैलकुलेटर बंद करो। फाउंडेशंस से स्टार्ट करो, और फाउंडेशंस को पहले अच्छे से 1 हफ्ता रगड़ दो। मतलब कोई तेरे को बोले ऋषु, कि ऋषु मेरे को ये बताओ कि 24 और 60 का एलसीएम क्या होगा, तो सीधा 120 आना चाहिए। इसमें अगर तुमको 10 सेकंड भी लग गया तो फाउंडेशन वीक है। और फाउंडेशन वीक रहेगा तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। वही चीज़ है सर। समझ में आ रहा वही है? चीज़ है सर, शुरू से मैथ्स में मतलब बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, शुरू से मैथ में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर मेरे बात को नहीं। परसेंटेज भी निकालना हो, हाँ, परसेंटेज निकालना हो, एलसीएम एचसीएफ करना हो, रेशियो निकालना हो, कुछ नहीं हो सकता सर। मतलब समझिए कि बिल्कुल जीरो है, नल। वही तुझे कह अब रहा हूँ मेरे कि को, अगर बिल्कुल अब मैं जीरो वो भी है, आपसे अगर आपसे ये बिल्कुल। पूछना चाह रहा हूँ सर कि हाँ। मतलब अगर ये बैच लेता हूँ यहाँ पे, हम्म। इस जो आप 4 महीने के मेरे को यहाँ पे जो क्या कहते हैं कॉल पे बताइए 4 महीने के लिए, तो सर इस वाले बैच में क्या मेरे को ये बेसिक पढ़ाया जाएगा कि या फिर जैसे नॉर्मली क्लासेस चलती हैं वैसी चलेंगी, देखो, या फिर ये बेसिक क्लियर होगा कि मेरे को कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। सो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि एक तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्लासरूम सेशन है, क्लासरूम सेशन इज ऑन गोइंग, बट एवरी स्टूडेंट हैज अ वेरी डिफरेंट ट्रैक। मतलब हर एक स्टूडेंट का जो, देख बेसिकली वन ऑन वन मेंटोरशिप का प्लान क्यों होता है, मतलब वन ऑन वन मेंटोरशिप करने की जरूरत ही क्यों है। उसकी ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का प्रिपरेशन के अंदर लेवल अलग अलग होता है। ठीक है। क्लासरूम का जो प्रिपरेशन है, क्लासरूम का प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल तुम्हारा बेसिक से लेके एडवांस तक, सेक्शनल्स के अंदर, मॉक्स के अंदर सारा चीज़ें जाता है। ठीक है। 120 डेज है तो 120 डेज के हिसाब से वो चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो गेम प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तुम्हें क्लासेस के पैरेलल भी मेंटोर से कनेक्ट करके अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना चाहिए। दिशु समझ में आया? हम्म। तुम्हारा हाँ हाँ। इंडिविजुअल प्लान। सो बेसिकली दैट इज द कोर आइडिया ऑफ पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप। हम क्यों बोलते हैं कि भाई पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप जरूरी है, क्योंकि हम्म। एवरीबॉडी हैज अ वेरी डिफरेंट प्रिपेयर्डनेस। उनका अपना लेवल अलग अलग है। एक क्लास में अगर 50 लोग भी होंगे, ठीक है, तो क्या वो 50 लोग, सब लोग एक ही लेवल पे हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम्म। 50 लोग सारे के सारे एकदम अलग अलग लेवल पे होंगे। कोई इंसान कॉन्सेप्ट बेसिक्स जानता है तो उसको कॉन्सेप्ट डेप्थ के ऊपर काम करना है। कोई इंसान कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं जानता है तो उसको कॉन्सेप्ट बेसिक पे करना है। और कोई बिल्कुल जीरो है तो उसको फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। तो उन सब सर का तो ट्रैक अलग अलग बनता है और उनके पास रिसोर्सेस होते हैं ताकि वो अपने ट्रैक के हिसाब से पढ़ाई कर सके। ठीक है। वही चीज़ है सर, मेरा ये तो एकेडमिक्स भी इस समय चल रहा है जो, राइट। तो एकेडमिक्स में भी अब सुबह क्लासेस होंगी, सुबह से 3 बजे, दो 3 बजे तक। राइट। फिर शाम को वहाँ एक्टिविटीज भी चलती हैं। तो राइट। अब वहाँ उसको, और फिर इसके कम से कम इसमें तो मुझे, अब मेरे हिसाब से जितनी मेरी वीकनेस है, कम से कम तो मुझे क्वेश्चन में 2-3 घंटे कम से कम दिन के देने होंगे लगाने के लिए, सही बात है। क्योंकि इससे अगर मैं कम करूंगा तो कोई फायदा ही नहीं है। सही बात है। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अगर मेरे को इतना होना चाहिए कि मैं पहले बेसिक्स अपने मतलब अच्छे से पढ़ लूँ एक बार पहले, क्या क्वेश्चंस को पहले नॉर्मली जैसे 8th 10th के जो क्वेश्चन आते हैं पहले,
हम्म। 8th में 10th में जैसे मैथ सॉल्व कराया जाता है, पहले मैं उस चीज को समझ लूं कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर नहीं मैं ऐसे देखो क्या ऋषु, कहते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पे पहुंचूंगा। मैं क्योंकि समझाता वर्ड्स हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करना मीन्स मतलब वर्ड्स एक बार वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आते हैं तो ये तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आते, तो क्वेश्चन देखने के बाद ही देखो मतलब। देखो ऋषु, ऋषु समझो, रुक जाओ, सांस लो, सांस लो। सबसे जी। पहले एक सिंपल चीज ध्यान में रखो, ठीक है? ओनली वन थिंग विच आई टेल यू, ठीक है? वन थिंग विच आई टेल यू इज के कंसर्न्ड होना ठीक है, लेकिन अपना काम कहीं से शुरू करो। ठीक है? कहते हैं ना कि पहले कुछ बनाओ, फिर उसको सुंदर बनाना। सिंपल चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट्स के अंदर जो ई बुक्स होते हैं, उसमें अस्त्र होता है, दिव्यास्त्र होता है और ब्रह्मास्त्र होता है। उसका लेवल अलग अलग होता है। जब कोई स्टार्ट करता है तो वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करता है जो रिलेटिवली इजियर होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली तुम स्टेप बाय स्टेप करो। मतलब अगर तुम प्रॉब्लम को फॉर एग्जांपल अपने दिमाग में एकदम फॉर एग्जांपल उसको बार बार खाली प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे, तुम उसको कभी सॉल्व करोगे ही नहीं। तुम ये मत सोचो कि 4 महीने में मेरे को 99 आ सकता है कि नहीं। तुम ये सोचो कि भाई 4 महीने में मेरे को 90, पहले मेरे को 90+ टारगेट करना है, या मुझे 95+ टारगेट करना है। देखो अगर कोई इंसान तीनों सब्जेक्ट में 95 लाता है तो उसका स्कोर कितना होगा कैट में? एनी आइडियाज? अगर कोई इंसान तीनों में 95 ले आता है तो उसका परसेंटाइल कितना होगा? एनी आइडियाज? ये जो अंकित ने बताया ना वही सही है। पॉइंट इज कि तुमको 99 लाने के लिए तीनों में 99 लाने की जरूरत थोड़ी है। तुम तीनों में अगर 95 ले आएगा तो भी तुमको 99 आ जाएगा। क्लियर है? तो माई पॉइंट इज कि मेरे भाई, इतना ज्यादा टेंशन मत ले, तुझे उस चीज को करना ही पड़ेगा। अगर तुम कॉर्पोरेट में बिल्ड करना चाहते हो, तुम कैट के थ्रू करो या तुम किसी भी एग्जाम के थ्रू करो, एप्टीट्यूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट। बिना एप्टीट्यूड के कोई तुमको सीनियर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट में नहीं लेके जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, व्हेन आई वेंट आफ्टर आई एम लखनऊ के बाद जब मैं आदित्य बिरला ग्रुप में गया, तो आई वॉज 25। मेरी टीम में जो बहुत सारे लोग थे जो 35 पे थे, और वो मुझे रिपोर्ट करते थे 35 पे, 33 पे, 38 पे। तो कोई भी कंपनी भाई 25 पे लाके तुमको बॉस बना रहा है, क्यों? वाई इज अ कंपनी मेकिंग यू अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर एट 25? क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है वो उन लोगों से काफी ज्यादा है, उनका एक्सपीरियंस तुमसे बहुत ज्यादा है, एंड यू मस्ट रेस्पेक्ट दैट। लेकिन तुम्हारा जो लेवल है, तुम्हारे लेवल के लिए वो कर रहे हैं, और वो लेवल अपने को बिल्ड करना पड़ेगा, कहीं से तो करना होगा। आज तक अगर मान लो हमने मैथ्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, आज तो जरूरत है कि हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टार्ट स्मॉल। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स मस्ट बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। तो ये सोचेगा कि यार 1000 स्टेप चलना है, तो पहला स्टेप भी नहीं ले पाए। तो पहला स्टेप लो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है? इशू क्लियर हुआ? सर, हाँ सर, एक और बात पूछनी सर। बताओ। आपने जो प्लान बताया मतलब पढ़ाई के लिए 2 घंटे जो क्लास असाइनमेंट्स हैं, हम्म। और इसमें क्यूए के लिए और वो, तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, पढ़ाई स्टार्ट जो कराएंगे सर वो किस हिसाब से होगी? मतलब या तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नहीं नहीं, या फिर कुछ स्टार्ट देखो, बेसिक्स वगैरह? बेसिकली स्टार्ट कभी भी क्वेश्चन से नहीं होता है। स्टार्ट हमेशा कॉन्सेप्ट से ही होता है। एंड कॉन्सेप्ट ठीक है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब वो बेसिक जो स्टार्टिंग से मुझे समझ ही नहीं आती है, हम्म, तो वो वहाँ उस पॉइंट्स को वहाँ रखा जाएगा, उस स्टार्ट किया जाएगा कि हाँ मतलब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ, one- मैं तुम्हें मैं ये समझ चाहता हूँ सर कि 1+1 2 होता है, मुझे ये बताए कोई कि 1+1 2 होता है। हाँ देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो 1+1 = 2 होता है। देखो, सो व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग इस ये जो तुम्हारा 120 डेज वाला बैच है, इसके पैरेलल वी आर गोइंग टू डू सेपरेट सेशंस ऑल्सो। जिनका क्वांट्स वीक है, जिनका क्वांट्स बहुत ज्यादा वीक है, उनके लिए हम फाउंडेशंस का सेपरेट सेशंस करा रहे हैं। ठीक है? तो तुम उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करो और ये वाले सेशंस के अंदर भी करो। देखो, दो चीजें समझो। हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल 120 दिन है रिशु। तो 120 दिन है, इसका मतलब ये है कि हम सारी चीजें सीरीज में नहीं कर सकते ना। हम अगर फाउंडेशन में 1 महीना यहाँ से लगा देंगे, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और 2 महीना लगा देंगे, तो 4 महीने में कैट एग्जाम आ जाएगा। तो हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट भी करने हैं और पैरेलली अपने को फाउंडेशन भी करना है। तो जितने लोग फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, उनके लिए वी विल डू अ वेरी वेरी एक सेपरेट प्लान ऑफ सेशंस ऑल्सो, जिसमें तुमको सर, एकदम बेसिक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन एक टेबल, ये सब चीजें करी जाएंगी। एक क्लियर? चीज तो क्लियर है सर कि मतलब मेरे को इस बार
पहले अपने चीज को फाउंडेशन को क्लियर करना पड़ेगा अच्छे से पहले, क्योंकि इस बार फाउंडेशन तो मुझे ही क्लियर सोचना, करना पड़ेगा। अगर इस किसी का बार तो मुझे, मैथ्स बहुत वीक है, अगर किसी का मैथ्स हाँ। हद से ज्यादा वीक है, तो उसको हम्म। पहले फाउंडेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए। वही उसको वही कॉन्सेप्ट चीज। से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल एज दैट। हम्म, हाँ। क्लियर है ऋषु? सो डोंट हाँ हाँ। वरी, आई विल कनेक्ट विथ यू एक बार एंड आई विल प्लान योर प्रिपरेशन। डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है? यस। डन है। अच्छा, अभी वो कहाँ गया? हाँ, पनिशर गैंग बताओ। पनिशर गैंग कहाँ चला गया? बताओ क्या तुम्हारा डाउट है? हेलो। हाँ हाँ, पनिशर बताओ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन द मीटिंग सर, मेरे ना मेजरली 3 से 4 डाउट्स हैं, ठीक है। बोलो। आई टेक इट लाइन वाइज। पहला सबसे मेजर डाउट है कि अरिथमेटिक आई एम प्रीटी डिसेंट इन दैट, बट वेन एवर इट कम्स टू एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, तो मैं कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देख लूँ, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, लॉगरिदम, इनइक्वालिटी, मॉडुलस, सब कुछ कर लूँ, जो क्वेश्चंस क्लास में कवर हो रहे हैं वो कर लूँ, फोकस कर लूँ उन पे। लेकिन उसके बाद जब मैं कोई टेस्ट लगा रहा होता हूँ या क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को वो चीजें क्लिक नहीं हो पाती कि कैसे क्या करना है। हम्म। पहला डाउट तो ये है। ओके। ओके, पहला सेकंड जो डाउट। मेरा डाउट है, सेकंड जो मेरा डाउट है कि whenever we attempt any mock, तो everyone says it depends on selection, what set you are choosing in DILR or what RC you are picking up in VARC, right? But I am confused how to do that because whenever I try to pick something, मेरे को लगता है वो familiar है, वो है, मैंने कर रखा है, ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट का पता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसमें फंस जाता हूँ, एंड आई ऑलवेज मेस अप इन पिकिंग हार्ड सेट। ठीक है। ठीक है, और बताओ। हाँ। तीसरा मेरा डाउट है कि मतलब जैसे उधर होता है, क्या बोलते हैं, जैसे क्वांट्स में है कि आई सी लेक्चर्स, आई क्लियर माय कॉन्सेप्ट्स, वेन एवर आई गो इनटू प्रैक्टिस मेरे को दिक्कत होती है। तो सेम हैपेंस इन DILR, आई वॉच लेक्चर्स, आई डू एवरीथिंग, बट व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व अ सेट, इट इज टेकिंग मी 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स टू सॉल्व अ कैट लेवल सेट, ठीक है। विच इज, सो इस वजह से बहुत सारी चीजें दिक्कत दे रही है, कॉन्फिडेंस चल जाता है। ठीक है, जो समझ गया। उसके बाद क्या होता है कि व्हेन योर टाइम इज क्लिकिंग अप, तो थोड़ा मेंटल पीस भी खराब हो जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारे तीन मैंने समझ लिया। जो तुम्हारा थर्ड वाला डाउट है वो फर्स्ट वाला जैसा ही है। फोर्थ पे भी कोई डाउट है? फोर्थ में सर, एलजेब्रा में तो फिर भी ये है कि वेन एवर आई वॉच कॉन्सेप्ट वीडियोस, तो वो मैं इम्प्लाई नहीं कर पाता क्वेश्चंस पे वेन एवर आई प्रैक्टिस इट। बट जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, ज्योमेट्री वाला सेक्शन इज लाइक 100% ब्लैंक फॉर मी। आई हैव ट्राइड इट लॉट ऑफ टाइम्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट्स, मैं पिछले 6 महीने से लगातार कर रहा हूँ, हर बार करता हूँ, लेकिन ज्योमेट्री क्लिक ही नहीं करता। ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैं लेट मी ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। तुम्हारा नाम क्या है? सर राघव। राघव। देखो राघव, सब लोग, जितने लोग भी अलजेब्रा में ये फेस करते हैं जो राघव भी फेस करता है, दीज आर गुड क्वेश्चंस टू टेक, बिकॉज हो सकता है बाकी लोग भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। तो अगर अलजेब्रा में तुम भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो मेरे को कंफर्म कर दो। ठीक है, चैट के अंदर बता। अब देखो, मैं सिंपल चीज बताता हूँ। राघव, मुझे एक बात बताओ, तुमने अलजेब्रा पढ़ लिया है ना? यस सर। पढ़ लिया अलजेब्रा, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताना कि यार, एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है? ठीक है एक्स रियल नंबर है। मैं एक्स प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या होगा? सर, ये AMGM से आएगा और लगाओ, इसका लगाओ एमजीएम लगाओ। वही दिक्कत है ना, अब EMGM पढ़ के उसको आ, एक्स का मिनिमम वैल्यू, इट कैन बी एटलीस्ट 2। सो यू आर सेइंग कि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट? हाँ। बट ये गलत है। ये गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ हो गया। अब देखो, ये गड़बड़ क्यों हुआ? अब देखो, एक सिंपल चीज है, ठीक है? मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि कैट लेवल हम क्या करते हैं ना, कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है? वीडियो देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है? उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हम सीधा कैट लेवल, मतलब इट्स लाइक कि गली क्रिकेट में जीत गए तो सीधा ऑस्ट्रेलिया टीम से मैच ले लिया। तुम समझ रहे हैं? कि गली हम्म। क्रिकेट में जीता और ऑस्ट्रेलिया टीम से मैच ले रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। पहले तुमको रणजी खेलना पड़ता है, ठीक है? तुमको फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अंडर 19 खेलना पड़ता है, उसके बाद तुम जाते हो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ध्यान से।
मैं तुम्हें समझाता हूँ। जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि टू आंसर है, एक्स रियल नंबर है, ठीक है। इस वाले में अगर तुम एएमजीएम, अगर तुम्हें जेन्युइनली एएमजीएम लगाना आता है ना, मैं तुमको बताता हूँ। अगर इसमें एएमजीएम लगाओगे तो कैसा होगा, देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बाई टू, ऐसे ही लगाते हैं ना, यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स इंटू वन बाई एक्स, मतलब वन आ जाएगा। वन का वो। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, हाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर आ गया। अब क्लियर है यहां तक? सर, एक सेकेंड। हाँ हाँ, बोलो। दोनों साइड स्क्वायर वन कर का दिया। वन का स्क्वायर रूट वन हुआ, उसके बाद टू उधर ले गए तो एक्स प्लस वन बाई एक्स टू हुआ ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये साइड में तुम स्क्वायर करेगा तो टू का स्क्वायर भी होगा ना। टू ओके। का स्क्वायर क्या लेकिन होता हम है? ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होगा। तुम जैसे भी समझो, लेकिन ये क्लियर समझ में आया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर आ गया। सिंपल एज दैट। यार बहुत सिंपल है। अब देख, राघव, ये कैलकुलेशन देखो, ये कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अपन टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टू इंटू रूट वन आ गया, सही है। हम्म। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। और रूट वन का स्क्वायर। वन। बहुत बढ़िया। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो गया। हाँ। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से तेरा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होगा, तो इस इनइक्वालिटी से दो चीजें निकलेंगी, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू और वाई लेस देन इक्वल टू माइनस टू। हाँ इनइक्वालिटी भी पढ़ा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बोल देते हैं कि भाई एक्स प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये तो हम लोग बोल देते हैं। लेकिन दूसरा वाला खा जाते हैं। कौन सा वाला खा जाते हैं, ये दूसरा वाला, एक्स प्लस वन बाय एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू। ये दोनों चीजें ट्रू होती हैं। एएमजीएम मैक्सिमम लोग आधा ही लगा पाते हैं, ठीक है ना। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था। ये लगा दिया और ये वाला नहीं लगाया। अब क्योंकि ये वाला नहीं लगाया, इसीलिए उस इंसान को पता ही नहीं है कि ये माइनस टू के लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करता है। तो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूछा था, उसका आंसर असल में माइनस इन्फिनिटी है। माइनस टू से लेफ्ट साइड में सारे के सारे नंबर्स पॉसिबल हैं। तो अगर मिनिमम लेना होगा और एक्स रियल नंबर है, तो आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है, अगर मान लो ये दिया हुआ है कि एक्स तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है, उस केस में आंसर क्या होगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो तेरा आंसर सही है, टू। लेकिन अगर एक्स रियल नंबर है तो आंसर टू नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अब समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं? हम्म। तो सिंपल चीज है कि अगर कॉन्सेप्ट इस लेवल पे क्लियर नहीं है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग फंसता चला जाएगा। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, एंड मैं वही चीज बोल रहा था कि भाई जब फॉर एग्जांपल अपन सेशन के अंदर बैठते हैं ना, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। दैट्स द रीजन वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सिट थ्रू द क्लासेस। बहुत सारे लोग क्लास इसलिए स्किप करते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल ठीक है रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे, बट क्लास का अपना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज तुम ये सारी चीजें डिटेल में प्रॉपरली सीख पाते हो। और बहुत सारे गैप्स अपने को रियलाइज होता है कि यार ये गैप अपना कवर हो गया, ये गैप मेरे अंडरस्टैंडिंग में गैप था। जो बहुत सारी चीजें हमने करी हुई है ना, उसमें जो गैप है उसको ही प्रॉपरली क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो क्लियर होगा तो क्वेश्चंस होंगे। सिंपल चीज है। प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 120 डेज इज कि ये कंसेप्चुअल गैप्स नहीं होने चाहिए। ये कंसेप्चुअल गैप होगा तो तुम्हें डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। सबको समझ में आया? प्रिया, क्लियर हुआ? हाँ 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 राघव, सर, ये वाला डाउट तो क्लियर हुआ, बट ये हो अब गया इस पहला चीज को। अलजेब्रा के हाँ। बारे में। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा डीआईएलआर के बारे में, ठीक है। देखो, डीआईएलआर के अंदर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, और उसका रीजन तो बहुत सिंपल है। कुशल, Kushal, the timings that we'll be doing for, for example, for the last 120 days, we'll be picking up, the 8 p.m. slots.
ठीक है। सो 8 PM स्लॉट्स कर सकते हैं, 10 PM स्लॉट्स कर सकते हैं, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है। नाउ आर्ची, आई वांट टू कम टू VRC ऑल्सो, बट मैं पहले थोड़ी सी बात DILR की कर लेता हूँ। देखो, DILR के अंदर मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मान ले तुम्हें इफ यू हैव टू लेट्स से सेलेक्ट बिटवीन एनीथिंग, मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हें संदेश, रसमलाई, रसगुल्ला, ठीक है, ये थोड़े शाम का टाइम है, थोड़ा स्नैक्स का टाइम है, तो मैं थोड़ी सी खाने पीने की बात करना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, रसमलाई, रसगुल्ला, ठीक है, और लेट्स से गुलाब जामुन, ये सब में से सेलेक्ट करना है, तुम कैसे सेलेक्ट करते हो? एनीबॉडी हु कैन टेल मी। अगर मान ले फॉर एग्जांपल हम स्नैक्स के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, अंकित बोल रहा है कैलोरीज देख के, ठीक है ना, और प्रियांशु ने जो बोला है ना, मैं असल में वही बोलना चाहता हूँ। पहले सेट सिलेक्शन के भी पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना तुमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट वैरायटीज करे हुए हैं कि नहीं। अब जैसे देखो, तुम्हारा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर ही 5 सब वैरायटीज होते हैं। राउंड रॉबिन होता है, पॉइंट्स बेस्ड होता है, सीड बेस्ड होता है, नॉकआउट होता है, डबल एंट्री मैट्रिक्स होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल से किसी ने सारे के सारे वैरायटीज नहीं करे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा ना। वो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले में कितना समय लगता है, जब तक उसने वो चीज करा नहीं है या वैसा सिमिलर कुछ नहीं किया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट ओरिएंटेड तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे तुम्हारा अरेंजमेंट से में लीनियर हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, उसके अलावा तुम्हारा ग्रुपिंग हो जाता है, स्केड्यूलिंग हो जाता है, सीक्वेंसिंग हो जाता है। तो जब तक तुमने ये सारे के सारे नहीं कवर किए हुए, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये वाला जब मैं करता हूं, एंड अगेन इट्स इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई एक सेट जो मेरे लिए लेट्स से हम सबके लिए लेट्स से मॉडरेट है, बट मेरे लिए रिलेटिवली इजी है, और राघव तेरे लिए रिलेटिवली डिफिकल्ट है। सिमिलरली कोई एक ऐसा सेट हो सकता है जो तेरे लिए रिलेटिवली इजी है, मेरे लिए रिलेटिवली डिफिकल्ट है, और सबके लिए मॉडरेट है। और ये यस सारी सर। चीज डिपेंड करती है फेमिलियरिटी के ऊपर। और यही फेमिलियरिटी का गेम आरसीज में भी काम करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी। DILR और VARC कॉन्सेप्ट ड्रिवन नहीं है, अप्रोच ड्रिवन है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें फॉर एग्जांपल लेट्स से इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब पढ़ना है। यहाँ पे तुम्हें अप्रोच डेवलप करना होता है कि अगर सीड बेस्ड होगा तो क्या अप्रोच लेना है। और जब भी सीड बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, अप्रोच सेम रहेगा हमेशा। थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन हो सकता है कैलकुलेशन वाले टाइम पे, लेकिन अगर सीड बेस्ड आएगा तो अप्रोच या थॉट प्रोसेस सेम ही लगेगा। अब किसी ने नहीं किया है और किसी ने किया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि उसको एडवांटेज है जिसने किया हुआ है? तुम खुद सोचो। अगर किसी ने सीड बेस्ड नहीं किया हुआ है और सीड बेस्ड का प्रॉब्लम आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको डिसएडवांटेज होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अप अ विड्थ फर्स्ट अप्रोच। तो नेक्स्ट 120 डेज में DILR के अंदर वी आर गोइंग टू टेक अ विड्थ फर्स्ट। पहले 30 दिन का प्लान होना चाहिए कि विड्थ फर्स्ट, मेरे को हर एक वैरायटी। इनफैक्ट अगर तुमने डैशबोर्ड पे DILR का ई बुक देखा है, DILR के ई बुक में हमने डिवाइड भी किया हुआ है कि अरेंजमेंट्स के सेट सॉल्व करो, पजल्स अलग से सॉल्व करो, ठीक है, स्केड्यूलिंग के सेट्स तुमको उसमें मिल जाएंगे। पॉइंट इज कि अगर तुम लेट्स से मॉक भी दे रहे हो और ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि स्केड्यूलिंग के सेट में प्रॉब्लम है, तो जाके स्केड्यूलिंग के सेट सॉल्व करो। तुम जाके रैंडम कोई भी सेट क्यों सॉल्व कर रहे हो? मैक्सिमम लोगों को जो जिनको DILR में दिक्कत आती है, एक सेक्शनल में स्कोर नहीं आया तो उनका अप्रोच क्या होता है? दूसरा सेक्शनल दे दो, फिर से नहीं आया तीसरा दे दो। तो ये तो गैम्बलिंग हो गया ना, यू आर नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट वे। सो वन सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि बॉस, अगर तुम DILR के अंदर अच्छा करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग, सिंपल थिंग, ऐश्वर्या, नेक्स्ट 30 डेज DILR के अंदर सारे के सारे वैरायटीज कवर करेंगे इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। यू सॉल्व एवरी वैरायटी थ्रू द ई बुक्स, थ्रू द प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है, सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद हर एक वैरायटी के अंदर डेप्थ बिल्ड करो और सेट्स लगाओ, और मिक्स सेट्स भी करो। मिक्स सेट्स क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल केसलेट्स के बारे में तुमने सुना होगा। तो केसलेट क्या होता है? केसलेट बेसिकली तुम्हारा मिक्स्ड सेट होता है। ठीक है। सो वन सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि मिक्स्ड सेट्स क्या होते हैं बेसिकली। अगर मान लो लेट्स से मैंने अरेंजमेंट को कंबाइन कर दिया बार ग्राफ के साथ में, तो ये बन गया केसलेट प्रॉब्लम। ठीक है। तो वन सिंपल थिंग अबाउट केसलेट्स इज कि अगर आपने वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं किए हुए हैं, अरेंजमेंट्स, बार ग्राफ्स, इनको प्रॉपरली आपने नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं मिक्स करूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड देयरफॉर स्टार्ट विथ विड्थ फर्स्ट एंड देन यू मूव इनटू मिक्स्ड प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोगों का अप्रोच ये होता है DILR के अंदर कि 450 500 सेट कर दो, जिसके अंदर से 350 400 अरेंजमेंट का ही सेट होता है।
तो वो वैरायटी कभी बन ही नहीं पाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ सेट्स, रादर देन जस्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहूंगा कि हर एक में से एक एक सेट लगा के चल जाओ, दैट्स नॉट माई इंटेंट। माई इंटेंट इज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई हर एक वैरायटी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है? आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। क्लियर है राघव? यस सर। Done it. So now let me, also move forward. If in case you have any other questions, I can take that. But let me also, dig deeper. So basically, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, QA focus, DILR focus, VRC focus. बट जिस दिन QA फोकस भी है उस दिन भी DILR VRC के भी सेक्शनल्स अपने को करने करने हैं, ठीक है? एंड सिमिलरली आपका कम से कम यहाँ से कम से कम एक मॉक भी लेके चलना है, बिकॉज मॉक इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। यस विनय, गो अहेड। Vinay, go ahead. Okay. Let me now quickly move through the next important element. Vinay, are you Am I able to hear audible? me? Yes, yes, Vinay, go ahead. So, sir, my doubt is, I mean, when you start preparing for DILR, I mean, apart from the, sectional tests and everything, I mean, the topics which you've given, like scheduling and all those things, Right. is there, I mean, a way to understand DLR as in, how to approach the problems and everything? Because if I can't ask anything which is not on those sets, I mean, which is not related to any of those sets, how will we go about solving those things? I mean, or देखो, is there no, no, I mean, is that permanent I'll tell you, Vinay. to देखो मैं have to तुमको test on all those, I mean, only those topics? यस, लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जिससे तुम्हें बड़ा मजा आएगा देखने में। ओके, देखो, डीआईएलआर के अंदर दे विल ऑब्वियसली बी अ फ्यू थिंग्स जो कि एकदम अनप्रेसिडेंटेड, नया, अनप्रिडिक्टेबल होगा। बट कुछ चीजें हमेशा ही रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये चार्ट मैंने पहले भी शो किया हुआ है, बट लेट मी शो समथिंग टू यू। हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पांच के पांच सेट्स एकदम अनसीन आ गए, कभी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे बस्सी भाई ने बोला है ना, कि पेपर देखे और पेपर देख के धक से वहीं मर जाए। ठीक है, कि ये क्या देख लिया, वैसा नहीं होता है। ये देखो 2017 से लेके 24 तक अगर तुम सेट्स देखोगे ना, तो तुम देखोगे कि फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बाकियों से ज्यादा है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे तुम्हारे ज्यादा रिपीटिशंस हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले वैरायटीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे डेटा टेबल्स, नियरली तुम्हारा 15% का एवरेज बनता है। अगर तुम ग्राफ्स एंड चार्ट्स देखोगे तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स के अंदर पाई चार्ट, बबल चार्ट, कैंडलस्टिक, रेडार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, बार ग्राफ्स, ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स मिला के करीब करीब 15% बनाता है। ठीक है, उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, अगर हम 12 और 5 का एवरेज लेते हैं तो 8.5% आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में बन जाता है। अगर आप अरेंजमेंट्स में देखोगे तो 10 + 19, 14.5% अगेन अरेंजमेंट्स के अंदर आपका वेटेज है। रूट्स एंड नेटवर्क्स के अंदर नियरली 8% का वेटेज है। ठीक है, स्केड्यूलिंग के अंदर अगेन तुम्हारा करीब करीब 9.5% का वेटेज है। राइट, सो दिस वेरी क्लियरली टेल्स यू कि ऐसा नहीं होता है। तुम उठाओ पेपर 2017 से 25, तुम्हें यही चीज, वही एनालिसिस जो हमने किया हुआ है तुमको उसमें क्वालिटेटिवली दिखाई देगा। सो वन थिंग विच आई टेल यू इज कि डू नॉट प्रिपेयर फॉर द अनप्रेसिडेंटेड, प्रिपेयर फॉर द कन्वेंशन। कन्वेंशन से ही तुम्हारा 1.5 से 2 सेट निकल जाएगा। तुमको अगर तुमने 1.5 सेट भी कर दिया तो तुम 98+ है, और 2 कर दिया तो 99 हो जाएगा। सो माई पॉइंट इज कि सारे सेट्स तो सॉल्व ही नहीं करने होते हैं। तो अगर कोई इंसान प्रॉपरली विड्थ वाले अप्रोच से चले, वैरायटीज को प्रॉपरली समझे, उन सेट्स को पहले अच्छे से सॉल्व करे, उसके बाद जो सेट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चले रादर देन डूइंग रैंडमली। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, आई एम डेफिनेटली नॉट टेलिंग कि भाई आप सॉल्व मत करो, आप डेफिनेटली सॉल्व करो, बट हैव सम स्ट्रैटेजी, सम एनालिटिक्स। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस जेप्टो एंड ब्लिंकिट एनालिटिक्स पे ही चल रहा है ना, कि तुम क्या ऑर्डर करोगे आज रात में, फॉर एग्जांपल इस पिन कोड में क्या क्या ऑर्डर होने वाला है, वो सब उनको पता है। राइट, सो दैट इज समथिंग विच दे आर यूजिंग एंड वी आर यूजिंग टू इफेक्टिवली मेक श्योर दैट वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। कम समय में अगर प्रिपेयर करना है तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एनालिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है विनय? So, my point is do not prepare for unprecedented sets, prepare for convention.
कि भाई फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा डेटा टेबल्स तो आएगा ही आएगा, हर साल आता है। तो डेटा टेबल्स कर अच्छे से, डेटा टेबल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। आई एम होपिंग कि समझ में आया। क्लियर है? ऑल राइट। शुभ इज सेइंग कैन यू शेयर द पीडीएफ? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ऐश्वर्या सिंह कैसे सॉल्व करना है ये समझें और वैरायटीज के सेट को सॉल्व करें। तो पहले यही करो कि सारे के सारे वैरायटीज सॉल्व करो। ठीक है, सारे के सारे वैरायटीज करो क्लास के अंदर, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड ई बुक्स के अंदर दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। क्लियर? आर वी ऑल गुड? ओके, ऑल राइट। अब कमिंग बैक टू बेसिक, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाता हूं मैं। ये देख लो, इज एवरीबडी एबल टू सी द स्क्रीन? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ओके, इज एवरीबडी एबल टू सी द स्क्रीन? यस, ठीक है। अब देखो, अब देखो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, ई बुक्स रक्षित आर देयर ऑन द डैशबोर्ड, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द नेक्स्ट 120 डेज प्रिपरेशन। And the preparation has just started with this session, and then now we are going to get into the sessions from tomorrow. ठीक है। मैं अर्चना सिंह की वीआरसी का भी मार्किंग स्कीम, अर्चना आई शेयर द मार्किंग स्कीम ऑल्सो वीआरसी के अंदर भी। ठीक है, वीआरसी के अंदर फॉर एग्जांपल देखो, वीआरसी में भी अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जहां से तुमको मैक्सिमम आरसीज आते हैं, इसका भी एनालिसिस हमने किया हुआ है। वील शेयर दैट विथ यू। एंड उसके अंदर तुम्हारे पास मैक्सिमम यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एनिमल प्लैनेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री लिटरेचर, साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, फिलोसफी। सो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। इन्हीं के अंदर रीडिंग करनी है और इसी टाइप के आरसी सॉल्व करने हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी हैव टू गो विद इट। तो आपके डू अटेंड द सेशंस सोच के नहीं एंड रहा डू होगा। इफेक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा लेट अस डिग डीपर। अब ये रहे तुम्हारे जो कोर सेट्स हैं। ठीक है, ये देख लो। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने को, लेट्स से अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई ये अपने कोर वैरायटीज हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें दिखाया कि इंपॉर्टेंट वैरायटीज कौन से हैं, वो हमने देख लिया है। ये तुम्हारे कोर वैरायटीज हैं, और हर एक वैरायटी के अंदर 5 से 8 सेट्स का टारगेट होना चाहिए, 10 वीक, यानी कि 70 दिन। अगले 70 दिन का टारगेट कि हर एक वैरायटी के अंदर 5 से 8 सेट्स करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर एक के अंदर एटलीस्ट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारे 2 से 4 सेट्स हम क्लास के अंदर ही कर लेंगे, और बाकी 2 से 4 सेट्स तुम घर के अंदर भी कर लोगे विथ ई बुक्स, जिसके अंदर हमने डिमार्केट करके सेट्स डाले हुए हैं दैट यू कैन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद में और क्या है? इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से तुम्हारा क्यूए, क्यूए के अंदर मैं बस सिंपल कहूंगा कि भाई आपने, अगर फॉर एग्जांपल अपने स्टार्ट करना है, अगर बिल्कुल बेसिक मतलब एकदम ही जीरो है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को इस बात की चिंता होती है, उनके लिए वी विल बी अरेंजिंग फाउंडेशन सेशन सेपरेटली। तो फाउंडेशन सेशंस अलग से करेंगे, फाउंडेशन सेशंस अटेंड करो, उसमें भी बैठो, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके कॉन्सेप्ट लेसन्स हैं, वो कॉन्सेप्ट लेसन्स के अंदर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक एंड कॉन्सेप्ट डेप्थ दोनों हम करेंगे। सो डू नॉट मिस आउट, एंड एवरी डे जो आपका एलिमेंट चल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप ई बुक से और प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और जिस दिन भी आपका फॉर एग्जांपल फोकस डे है, मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से मंडे तुम्हारा क्वांट्स फोकस डे है, तो क्वांट्स फोकस डे वाले दिन भी डीआईएलआर और वीआरसी के एक एक सेक्शनल लगाना है। ठीक है, सो दैट थोड़ा सा तुम्हारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। ऐसा ना हो कि यार तुम क्यूए क्यूए ही करे जा रहे हो, डीआईएलआर वीआरसी तुमने इग्नोर मार दिया है, दैट्स नॉट थिंग। अब जिस दिन तुम्हारा डीआईएलआर फोकस डे है, उस दिन एक क्वांट्स का सेक्शनल कर लो, एक वीआरसी का सेक्शनल कर लो। और जिस दिन तुम्हारा वीआरसी फोकस डे है, उस दिन तुम्हारा क्वांट्स और डीआईएलआर के सेक्शनल कर। क्लियर है? सो दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर प्रिपरेशन। एंड वीकेंड्स में थोड़ा सा एडिशनल टाइम दो। ठीक है, वीकेंड्स में तुमको क्योंकि मॉक्स करने हैं। आई थिंक कॉस्टा वाज आस्किंग मॉक का फ्रीक्वेंसी। मॉक का फ्रीक्वेंसी मैं ये कहूंगा कि देखो भाई, अगर तुम यहाँ से पहले से स्टार्ट कर चुके हो, इफ यू स्टार्टेड 2 मंथ्स पहले, यहाँ से अगर 2 महीने पहले तुमने स्टार्ट किया हुआ है, तो तुम यहाँ से 2 2 मॉक्स करके चल सकते हो। अगर तुमने अभी स्टार्ट किया तो एक मॉक्स लेके चलो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो। 2 घंटे बैठना अपने आप में एक चैलेंज होता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? ठीक है, तुम अगर फॉर एग्जांपल 2 घंटा बैठेगा ना, 2 घंटा बैठना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो आई विल से कि बैठना शुरू करो, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ओके, एब्सोल्युटली मृगना, वी विल डिस्कस ई बुक्स वाले डाउट्स, हमारा एक वी विल डिस्कस दैट इनसाइड द क्लास ऑल्सो, जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं उसके अंदर, दैट्स नंबर 1। सेकंड, इनसाइड द ग्रुप ऑल्सो, एंड थर्ड, वी विल बी शेयरिंग अ
डाउट लिंक हम आपके साथ में शेयर करेंगे, जिसको वीक के एंड में हम सॉल्व करके ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच विल बी डूइंग। ठीक है, DILR का स्लाइड फिर से दिखा देता हूँ, somebody was asking, ये रहा। मैं वैसे आई विल बी शेयरिंग द प्रेजेंटेशन ओनली, सो डू नॉट वरी अबाउट इट ईशा। मैं ये प्रेजेंटेशन ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये पूरा द प्रेजेंटेशन इज समथिंग विच आई विल शेयर, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद में ये देख लो भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। कितने लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा खराब है मेरा क्वांट्स, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा खराब है? अब ध्यान से सुनो, ये वाला स्लाइड तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तेरा क्वांट्स वीक है तो ये वाला स्लाइड तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है। ध्यान से देखो। अब तुम ये समझो कि कौन से टॉपिक से कितना ROI मिलता है। ROI मतलब कितना मेहनत करने से कितना मार्क्स मिलेगा उस टॉपिक के अंदर। हैव अ लुक एट इट। कुछ टॉपिक्स के अंदर, अब देखो, लेट्स से अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक फाउंडेशन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज, इसमें तुम्हें 10 से 12 घंटे का इन्वेस्टमेंट लगता है। और एवरेज तुमको 6 से 8 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक का ROI क्या है? वेरी हाई, 5 on 5, वेरी हाई ROI। अगर आप करना चाहते हो कि भाई मैं लेट्स से डिसाइड कर लूं कि कौन से एरियाज में मुझे ज्यादा फोकस करना है क्वांट्स में, अरिथमेटिक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मिक्सचर्स, 15 से 18 घंटे। यहां से भी करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये भी ROI अच्छा देता है। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक एडवांस्ड, एडवांस मतलब ट्रैक्स, रेसेस, पाइप्स, इंस्टॉलमेंट्स, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, इसकी ROI कम है। इसको तो तुम तभी करो जब तुम क्वांट्स में 99 प्लस मारना चाहते हो। कितने लोगों को समझ में आया? अगर क्वांट्स में तेरा 95 प्लस का टारगेट है तो तुम इंस्टॉलमेंट्स, ट्रैक्स, रेसेस नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हारा उसके बिना ही 95 आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये टॉपिक्स अगेन अंकित इजी लगता है अगर सही से समझ लिया तो। अगर नहीं समझा ना तो ये जानलेवा टॉपिक्स हैं एक्चुअली, जिसको अगर फॉर एग्जांपल जिसने मान लो सर्कुलर ट्रैक सही से नहीं पढ़ा है, उसको तुम दे देगा ना कि 87th मीटिंग निकालो, मर जाएगा। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू। सो इट्स इंपॉर्टेंट। अगेन एल्जेब्रा का जो तुम्हारा बेसिक है, आइडेंटिटीज हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, इंडाइसेस, यहाँ पे बहुत ज्यादा ROI नहीं है। ROI लेकिन एल्जेब्रा इंटरमीडिएट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, लॉगरिदम, इसके अंदर तुम्हारा ROI अच्छा आता है। तो इन चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड करो, बिकॉज यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं। अगेन फंक्शंस, मॉड्यूलस, ये सब के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ROI यहाँ पे फिर से कम है। तो आई विल से कि भाई अगर तुमको लेट्स से 5, अगर मैं सारे के सारे क्वांट्स को अगर मैं 10 चैप्टर में डिवाइड कर दूं, तो तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये 5 कर लो, 98 डन है। 98 से कम नहीं आ सकता है ये 5 करने के बाद, सिंपल इज दैट। और अगर 99.5 करना है तो ऑब्वियसली सब करना होगा, फिर तो कुछ एक्सेप्शन नहीं है। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। इज दिस ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ एल्जेब्रा, अभी एल्जेब्रा भी करेंगे अच्छे से। आई थिंक अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से तुमने अरिथमेटिक किया है तो अरिथमेटिक के अंदर कोशिश करो कि 6-7 क्वेश्चंस तो कम से कम निकलने चाहिए, है ना? जो तुमने नहीं पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन जो तुमने पढ़ा है अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, देन देर इज अ बिगर प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है? तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट, अगर मैं 10 चैप्टर्स में डिवाइड कर दूं क्वांट्स को, तो तुम्हारा अरिथमेटिक फाउंडेशन, अरिथमेटिक इंटरमीडिएट, अलजेब्रा इंटरमीडिएट जिसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज लॉगरिदम आता है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा अलजेब्रा एडवांस्ड, फंक्शन मॉडुलस ग्राफ्स, और ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, पॉलीगन, ये 5 टॉपिक्स 98 प्लस है। अगर तुम्हारे पास समय कम है और तुम इतना भी कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसा मैंने बोला 99 प्लस चाहिए तो सब करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। संघर्षा, आई थिंक आई थिंक वन थिंग विच आई टेल यू इज के अगेन द सेम थिंग, आई एम स्टडिंग टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क अगर तुम कर रहे हो तो आई से एक बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, चलो टाइम एंड वर्क के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है? एक बार फटाफट कंफर्म करो। सबने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है? ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ अगेन भाई। ठीक है, देख तुम्हारा फोकस अगर सिर्फ अंडा से भुर्जी बनाना है तो कैट का क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है, कैट का क्वेश्चन निकालना है तो भुर्जी से अंडा बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, जनरली हम टाइम एंड वर्क में किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट जब सीखते हैं तो somebody does a work in 10 days, somebody does a work in 15 days, how much time will they take to do the work, ये सबको आता है। गिव मी यस और नो इन द चैट। 10 डेज में करना है, 15 डेज में करना है। ठीक है, दोनों मिल के करेंगे तो कितना समय लगेगा? आसान क्वेश्चन है कि नहीं? अब जरा चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको जरा चेंज कर देते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर आर 2 पीपल। ठीक है, 2 लोग हैं।
रुको, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं ना, तो मजा आएगा इसको इसको डिस्कस करने में। ओके, एवरीबडी इज एबल टू सी द स्लाइड? एक बार फटाफट कंफर्म करो सब लोग स्लाइड देख पा रहे हैं। समझो, कैट का एक्सपेक्टेशन समझना जरूरी है, देखो। ठीक है, और बैठ के पढ़ना है। समझ में आया सब लोगों को? सौरभ, बैठ के पढ़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि लेट का एकदम कि बढ़िया मूवी है स्पाइडरमैन, बहुत मजा आ रहा है स्पाइडरमैन देखने में, ये नहीं करना है। ठीक है, बैठ के थोड़ा थोड़ा शिद्दत से यार, थोड़ा तो फॉर एग्जांपल फाइट मारो। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी, ए और बी लेट्स से मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जहां पे बी जो है वो सिर्फ 75% ऑफ द टाइम काम करता है। ठीक है, अगर ए और बी अपने अपने फुल कैपेसिटी पे करते हैं तो काम को 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब बताना है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। अब देख लो, ये करना है अगर कैट लेवल के लिए तैयारी करनी है तो। ये नहीं कि ए 10 दिन में करता है बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ये तो सिक्स्थ क्लास में होता था ना भाई। ठीक है, सिक्स्थ क्लास में होता था। कौन से क्लास में होता था ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, कौन सी क्लास में था? सिक्स्थ में था कि सेवेंथ में था? ऐसे कुछ तो था, सिक्स्थ सेवेंथ में होगा ये। उसको करके मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट देयर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आई एम नॉट सेइंग कि वो तुमको करना ही नहीं है, करना है, स्टार्ट वहीं से करना है, लेकिन कैट के लिए ये करना है। तो देखो संघर्षा, अगर ये होगा तो कैट का क्वेश्चन भी होगा, और अगर ये नहीं होगा तो कैट का क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो सिंपल चीज है कि बैठो, पूछो। क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर रहे हैं, सिंपल वाले भी कर रहे हैं कि भाई ए 10 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द थॉट प्रोसेस। कितने लोगों का आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का? आया? तो भाई मेरे देख, मैं तुझे सिंपल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू वन वेरी सिंपल थिंग। देखो, कौस्तव का आंसर आ गया, अमन मिश्रा का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। एंड देवांश का भी आ गया, देवांश ने एक ही आंसर बताया। अब देखो ध्यान से, आंसर आ गया, अमन मिश्रा, कौस्तव, देवांश, अग्रवाल, बहुत बढ़िया। अब देखो एक सिंपल चीज तुमको बताता हूँ, सिंपल चीज इज के तुम्हारे को यू हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम अ सर्टेन डेप्थ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो चीज अपने को अच्छे से करना है। ठीक है, अगर ये होगा तो कैट का क्वेश्चन भी होगा, अगर ये नहीं होगा तो कैट का क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू नॉट ओनली वॉच रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग मत देखो, क्लास में बैठो, सवाल पूछो, क्वेश्चन पूछो, कैसे हुआ, कहाँ से आया, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे को इस वाले में डाउट है, मैं इसको इस तरीके से अप्रोच करना चाहता था, इज दिस द राइट थिंग टू डू और नॉट, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो डोंट जस्ट एक्सेप्ट सॉल्यूशंस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फॉर द नेक्स्ट 120 डेज, फॉर गॉड सेक, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, शुभ सिंह, इज इट एक्चुअली अ कैट लेवल सर? देख, हो जाता है तो ऐसा ही लगता है। तुम देखो कितने लोगों का आंसर आया है, 6-7 लोगों का आया है। ठीक है, जब हो जाता है ना तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे चलो, देखो। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैं बात करूं वीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन वीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूंगा कि यार फॉर एग्जांपल यहाँ से कम, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 वीक का टारगेट हो तो कम से कम 300 सेट होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे कि कौन से वैरायटीज के अंदर रीडिंग करनी है, और उन्हीं वैरायटीज के अंदर हम आरसीज भी सॉल्व करेंगे क्लास में भी, एंड आपके ई बुक्स के अंदर भी। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये कहूंगा कि जुलाई आपका अब ऑलमोस्ट जा चुका है। अगस्त के अंदर ट्राई करना कि 6 मॉक्स देना। अगर तुम सेक्शनल डेली 2 दे रहे हो तो ठीक है, तुम 4 भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सितंबर में मॉक्स की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आपका टारगेट, कितने मॉक्स देने का टारगेट रख रहे हो इस बार फटाफट कंफर्म करो। क्या टारगेट है तुम्हारा, कितने मॉक्स दे दोगे? शुभ बोल रहा है 80। ठीक है, अरे घाट है क्या? ठीक है, देखो एक सिंपल चीज है कि अगर तुम्हारा टारगेट है 99 तो 30 से कम नहीं होना चाहिए। ये एक समझ में है, अगर तेरा टारगेट 99 है तो 30 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई नो देयर विल बी एक्सेप्शंस। ठीक है, आई फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर वी हैड वन ऑफ आवर स्टूडेंट शिवम उपाध्याय इनटू एफएमएस दिल्ली, जो कि
फॉर एग्जाम्पल 12 मॉक में उसका ही गॉट अ 99.5 एंड ही गॉट इनटू एफएमएस दिल्ली, होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, बट एक्सेप्शन के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी में ये होना चाहिए कि 99 है तो 30 प्लस करना है। एंड अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगस्त में तुमको कम से कम सेक्शनल्स तो दबा के देना है भाई अगस्त में, मतलब दबा के सेक्शनल दो। मॉक्स तुम कम भी कर रहे हो, सेक्शनल डेली होना चाहिए यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉक्स का ये रखो कि भाई 4 से 6 हर वीक एक फुल लेंथ मॉक कम से कम देना ही देना है। 6 मॉक का टारगेट रखो अगस्त में, सितंबर में 8, अक्टूबर में तो भरना है, मॉक ही मॉक है, 12 मॉक्स। ठीक है। और उसके बाद नवंबर में भी 8 से 10 नीड बेस्ड, स्वाद अनुसार। ठीक है, क्लियर है। पीवाईक्यू का सेक्शनल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीवाईक्यूज दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आई एम होपिंग कि क्लियर हुआ होगा। कोई और डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछ लो। People who are not yet started want to get started for their preparation in the last 120 days in a personalized manner. ठीक है, wherein you want के there should be a plan of action which suits your current levels, and a curated plan is given to you. You can drop us a WhatsApp and get started today. But I'm hoping that this gives you clarity in terms of कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, किस लेवल पे एक्सपेक्टेशन है कैट का, कैट किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, और हमें उस लेवल तक अचीव करना है। ठीक है। तो वो बेसिक बेसिक्स पढ़ के नहीं होगा, बेसिक भी पढ़ना है, बट डेप्थ में जाना जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, सेक्शनल्स मॉक्स इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ में आपका इनसाइड योर ग्रुप यू विल हैव योर डेली ट्रैकर्स, डेली ट्रैकर फिल करते जाओ। यू विल कीप गेटिंग अ कॉल फ्रॉम आर साइड ऑल्सो कि भाई तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है। दैट्स वन। सेकेंड, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, कहीं पे ऐसा लगता है कि यार गिव अप करने का मन कर रहा है, मुझे भी हुआ था, सो आई विल नॉट से कि भाई कोई मैं बहुत एक्सेप्शनल इंसान हूँ। सबको होता है, एक पॉइंट टाइम पे लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा। कभी ऐसा लगता है कि गिव अप करने का मन कर रहा है, तो कॉल करो और बात करते हैं। ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है। ऑल राइट, दिवांश बोल रहा है कि टॉपिक्स को साइड बाय साइड कैसे कवर करें फॉर क्यूए। साइड बाय साइड मतलब क्या होता है? ठीक है। बेसिकली तेरे पास अगर फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारा क्वांट्स का डे है, तुमने एक टॉपिक कर लिया है। ठीक है, एक टॉपिक तुमने क्लास से कर लिया, तेरे पास और टाइम है तो एक और टॉपिक कर लो। तुम्हारे पास क्यूए के कॉन्सेप्ट वीडियोस भी हैं डैशबोर्ड पे, तो वहां से फॉर एग्जांपल एक और टॉपिक उठा लो, एक और टॉपिक कर लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो तेरे पास टाइम अगर है तो तुम कर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। आर्ची, वी हैव टू एनालाइज योर मॉक फर्स्ट, सो आई विल कनेक्ट विथ यू टू एनालाइज योर मॉक। ठीक है ना? क्लियर है आर्ची, डोंट वरी। सो 27 वालों का वी हैव अ प्लान ऑफ एक्शन क्यूरेटेड। ठीक है, अभी ये वाला सेशन आई एम होपिंग कि 26 के थॉट प्रोसेस से क्लियर हुआ होगा। ओके। कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट बिल्डर वाले मॉड्यूल से अलजेब्रा पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन अलजेब्रा का सेशन फिर भी मिस नहीं करना है। समझ में आया? पता चला चिल मार दिया कि सब पढ़ लिया, अब क्या जरूरत है क्लास जाने का। ठीक है, तो इस क्लास में आई एम किडिंग यू नॉट, वील सॉल्व वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चंस, तो डू नॉट मिस आउट ऑन क्लासेस। ठीक है जी, सब लोगों को क्लियर? कोई और सवाल आपके दिमाग में, एनीथिंग दैट यू फील इज नॉट क्लियर? Uh, गो अहेड विनय। Sir, so sorry. I mean, last time I got disconnected. गो अहेड। I was almost clear on the part that where you talked about the DILR thing. The now my doubt is, I mean, I've spoken to a lot of people and they all, say one thing that it's not possible for anyone to score 99 percentile when you start. I mean, coming from non-batch background and you have no such experience of aptitude and DILR and all those things. And the thing is, I mean, they told me that 3,000 people get 99, 2,000 from them are from IITs and NITs. And so, I mean, also the last time CAT takers. So I don't know. I mean, the thing is, I'm ready to put in the hours which is required. I mean, 4 5 hours per day. But is that sufficient enough? Because last time, I mean, not I gave IPMAT as well. I mean, during my undergrad, and on in that time also, I mean, during that time also, I joined time for its crash course. I mean, ओके। the thing I did not practice well. I mean, I took it very lightly. It was like, I mean, in class I understood the topic. I mean, that the other guy, which what was his name? The gang one. He was talking about, right? Yeah, you understand the topics, but then you're not able to apply those topics on the questions, right? Application makes something which application part is difficult. So that happened with me last time as well. This time also, I mean, I've done
two, three topics on my own. But when it comes to solving question, I'm able to solve the basic ones. But when it comes to apply the two topics together or something, percentages and ratio interposition or mixtures and aggregations, and then again some other topic as well. So that's where I get stuck. So I don't know. I mean, what should I do? देखो विनय, आई टेल यू वन सिंपल थिंग ठीक है, कि आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, ओके, एंड ड्यूरिंग द जर्नी यू विल ओनली मीट टू काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, दो प्राणी तुम्हें मिलेंगे। एक वो जो तुमको बोलेंगे कि पॉसिबल है, किया जा सकता है। दूसरे जो तुमको बोलेंगे कि संभव नहीं है। ठीक है, जब तक अचीव नहीं होता है, ठीक है, तब तक दोनों के दोनों ही गलत हैं। ठीक है, जब अचीव हो जाता है तो तुम्हें पता चल जाता है। वन थिंग विच आई कैन टेल यू इज कि आई कैन गिव यू इनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल हु हैव डन इट इन 120 days फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, फ्रॉम नॉन आईआईटी बैकग्राउंड ऑल्सो। वो मैं कर सकता हूँ तेरे लिए। आई कैन गिव यू, यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, आई कैन गिव यू इनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल who have done it in the last 120 days, and they are not from IIT background, they are not from even engineering भी छोड़ दो, कॉमर्स वाले, कॉमर्स बीबीए, ठीक है, बीसीए एमसीए, इस टाइप के बैकग्राउंड वाले लोग। तो वन थिंग विच आई टेल यू इज कि भाई देख, यू कैन आइदर टेक द ऑप्टिमिस्टिक रूट और यू कैन टेक द पेसिमिस्टिक रूट। आई एम विथ ऑप्टिमिस्टिक रूट बिकॉज इट हैज हेल्प मी पर्सनली इन माई लाइफ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई चीज इम्पॉसिबल भी होगी तो मैं उसको बिना ट्राई किए तो नहीं जाने दूंगा। बिकॉज फ्यूचर में जब मैं किसी, मतलब जेन्युइनली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई यूज्ड टू थिंक कि यार फ्यूचर में ऐसा होगा कि अगर मैं किसी को टॉप आईएम से देखूंगा तो मेरे को दुख होगा कि मैं नहीं किया। तो Yeah. आई विल नॉट वांट टू, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट रिग्रेट, बिकॉज आई Yeah. बिलीव रिग्रेट इज वर्स देन फेलियर। Yes. Yeah. सो आई विल recommend that you give it your best shot. मतलब genuinely, for example, see, we have also been, there are, separate teams within Litmus who are, basically doing interview preparation for a lot of B schools. So for a lot of top B schools, we are doing their summer internship and final placement preparation also. Okay. And I participate in some of those sessions also. And I tell people कि भाई, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, बड़ी कंपनीज आईटीसी एचयूएल ये सब मुझे क्यों लेंगी। ठीक है, एंड आई टेल देम जस्ट वन थिंग कि भाई मेरे, के अगर तू इंटरव्यू तक पहुंच गया तो तुम अपना काम इतना बढ़िया करो कि वो तुम्हें नहीं सेलेक्ट करे तो उसको दुख हो, तुम्हें नहीं। बिकॉज तुम अगर काम अपना बढ़िया करेगा तो तुम कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। ठीक है, Yes. पर उसको दुख होना चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल वो तुमको सेलेक्ट नहीं किया इंटरव्यू के अंदर। दैट पर्सन शुड फील बैड कि यार अच्छा कैंडिडेट छूट गया। अगर इतना कर पाया तो तुम सक्सेसफुल होगा फॉर श्योर, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमारा गोल है। करेक्ट नो विनय? Yes. 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 ठीक है, सो आई एम श्योर तेरा आईपी मैट का एक्सपीरियंस भी है, आई एम प्रिटी श्योर कि तुम बढ़िया कर सकता है। आईपी मैट इज नॉट एन इजी एग्जामिनेशन। आईपी मैट में अगर तुमने एक्सपीरियंस या एक्सपोजर लिया हुआ है तो ऑब्वियसली बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में तुम्हारे पास एडवांटेज है। I mean, I mean, I was able to clear Snap. I mean, it's Snap or what is the, it's Snap, right? I mean, the undergrad synthesis test. राइट। Yeah, so I was able to clear that. I mean, the thing is, I was not practicing well. I mean, I didn't practice on my own. I was just attending the lectures, solving the class questions, not any questions apart from that. So I believe, I mean, if I put like 5, 6 hours a day for CAT, I think I can manage. But then when I hear about these facts and everything, that makes me doubtful and everything. आई So विल, देखो एक चीज और लास्ट 120 days में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये डू नॉट टॉक टू नेगेटिव पीपल, नंबर वन। सेकंड, डू नॉट टेक सजेशंस फ्रॉम फ्रेंड्स। कितने लोगों के दोस्त हैं यहाँ पे? है कोई दोस्त? कितने लोग हैं जिनके दोस्त हैं? मैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल सीरियस डिस्कशन, सीरियस डिसीजन मेकिंग दोस्तों के साथ नहीं करता हूँ। बिकॉज तुम्हारे सक्सेस से और तुम्हारे फेलियर से भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे दोस्त को ही होता है। ये कितने लोगों को पता है? तुम्हारे सक्सेस से और तुम्हारे फेलियर से, दोनों से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे दोस्त को ही होता है। ठीक है, सीरियस डिस्कशन नहीं करने का दोस्त के साथ, नंबर वन। मजे मजे करो, नहीं नहीं जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू सुनील,
कि मैं अपने दोस्तों के साथ में खाली चिल वाले डिस्कशन करता हूँ कि गोवा का चलना है क्या। ठीक है, हमने गोवा के 2000 ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि गोवा जाएंगे गोवा जाएंगे। ठीक है, गोवा के प्लान्स बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम ये रैंडम डिस्कशन करते हैं, सीरियस डिस्कशन एक भी नहीं करते। सीरियस डिस्कशन आप कर सकते हो पेरेंट्स के साथ, मेंटोर्स के साथ। ठीक है। ठीक है, दैट इज दोज आर द पीपल हु डू नॉट वांट बैड फॉर यू। ठीक है, दे डेफिनेटली वांट गुड फॉर यू एंड दे आर नॉट कंपीटिंग। वो तुम्हारे साथ compete नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स नंबर वन। सेकंड, if you find, for example, let's say a lot of people, you are taking advice, if you are believing that you are not getting advice and the advice is negative, I will suggest refrain from taking such advice. ठीक है, ये बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि 4 महीने में एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इज व्हाट वी शुड टेक। ठीक है, मैं यही मानता हूं कि मतलब मैं वो इंसान हूं जो क्रिकेट मैच, जो फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट मैच है ना, जब लोग फॉर एग्जांपल टीवी बंद करके चले जाते हैं ना, तब भी मैं लास्ट बॉल तक देखता हूँ। मैं वैसा वाला फैन हूँ। समझ रहा है? ऑप्टिमिस्टिक कि लास्ट बॉल पे भी कुछ हो सकता है, नो बॉल हो सकता है, वैसा वाला इंसान हूं मैं। ठीक है, तो यू बिलीव एंड यू पुट इन योर बेस्ट, यू विल डू वेल। क्लियर विनय? Yes, sir. Thanks. Thank you so much. God bless. God bless. God bless, guys. I'm hoping that this was helpful. Give it our best. Let's let's kill it in the next 120 days. I'm pretty sure many of us can do it. Fight मारो, मेहनत करो। ठीक है, you should be proud of yourself. अपने आप को impress कर दो। I think that's something which is more important than anything else. God bless, guys. Bye bye.